Hello everyone, welcome to the Daily Hindu Analysis. So today is 29th of July and we've been doing this videos 25th of June. All those people who are preparing for any of those law entrance examinations, you should definitely watch this series. Any question that comes in your GK portion, be it your critical reasoning passages or your language passages, even a lot of questions of legal can be just answered through watching these videos, right? What you have to do is I'll make sure that I'm telling you the concepts behind the topic. Just read it from the newspaper, make your own notes, and you're done for the examination, right? So we'll start with the first page. The first page talks about focus on inclusion, not exclusion. Supreme Court tells Election Commission. Supreme Court has told the Election Commission that it should focus on inclusion rather than exclusion. मतलब क्या है? See, if you have been following this news is a cakewalk. वो क्या रहा है? Elections are scheduled in Bihar, right? Elections are scheduled in Bihar. इंडिया में इलेक्शंस कराने का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है. वी हैव 3 इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया. इनिशियली व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो हमारे पास एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था. बट थ्रू द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which took place in 1989, election commissioners were increased from 1 to 3. Very important for your examination. इलेक्शन कमीशन का इंसेप्शन हुआ था ऑन 25th of Jan 1950. The reason why 25th of January is celebrated as National Voters Day. This was a question in 75 years complete हो रहे थे 2025 में. लास्ट ईयर रिलेट ने क्वेश्चन पूछ लिया. चलो, Election Commission is a constitutional body because it is mentioned in the Constitution of India under Article 324. The Article 326 of India says that any person who is above the age 18, irrespective of his caste, color, race, gender, sex or place of birth, will be eligible to vote. Hence, voting is a constitutional right. It is mentioned in your voting right. Voting in India is based on universal adult vote. Initially, when we got independence, the voting age was 21. This was reduced to 18 by the 61st Constitutional Amendment Act. इलेक्शन कमिश्नर भी 61st से बढ़े थे और वोटिंग एज भी रिड्यूस हुई थी. एंड दिस टुक प्लेस राजीव गांधी जी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर. चलो, नाउ सम फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट. Currently, we have 33 plus 1 judges in Supreme Court. One is your Chief Justice of India. Initially, when we got independence, there were 7 Supreme Court judges. The term Supreme Court is mentioned under Article 124 of the Indian Constitution. In case of violation of your fundamental rights, you can approach the Supreme Court under Article 32, which talks about writ jurisdiction. Also, the Supreme Court of India has only a single branch. The retiring age of a Supreme Court judge is 65 years, while the retiring age of an election commissioner is 6 years or 65 years, whichever is earlier. The removal of a Supreme Court judge can be done by Parliament. इसको डिटेल में पढ़ने के लिए you should watch 2-3 दिन पुराना हिंदू का analysis. Please watch it. This is a very important question for your upcoming examination. So the Parliament gets to decide the number of Supreme Court judges. Also, the Parliament has the power of removal of a High Court or a Supreme Court judge. And this is in news because of Justice Verma. इसको प्लीज आप मेरे एनालिसिस को देखोगे तो मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है. चलो, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला फोकस ऑन इंक्लूजन रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सक्लूजन. हो क्या रहा है? देयर आर इलेक्शंस scheduled in Bihar. Now, the Election Commission of India has the responsibility of conducting the elections of President, Vice President, Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly and State Legislative Council. Hence, बिहार का इलेक्शन भी कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? वोटर लिस्ट बना रहा है टू चेक हु ऑल वुड बी एलिजिबल टू वोट. नाउ वोटिंग इन इंडिया is given only to the citizens of India. So only the citizens of India can vote. बोला कि जिसका भी नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आएगा विल बिकम एलिजिबल टू वोट. और अगर आपका नाम नहीं आता है तो लेट मी नो. इसके लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज कराई विच इज कॉल्ड एज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की रिपोर्ट आनी है 1 अगस्त को. पहला ड्राफ्ट आना है जिसमें हमें पता चलेगा कि हु ऑल वुड बी गेटिंग द राइट टू वोट. अब कुछ लोगों का इसमें नाम नहीं आना है क्योंकि इसमें नाम आने के लिए यू हैड टू प्रूव दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया.
you had to prove that you are a citizen of India. अब बहुत लोगों ने इसमें अपना आधार कार्ड लगाया, बहुत लोगों ने इसमें अपना EPIC लगाया, विच इज योर वोटर आईडी. नाउ व्हाट इलेक्शन कमीशन सेड इज, एक तो सुप्रीम कोर्ट पहले बोल चुका है आधार कार्ड एंड EPIC आर नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप. तो बोथ ऑफ दीज आर नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. अब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये बोल के कि सर हमारा यहाँ नाम तो नहीं आ रहा. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन को कि आप इंक्लूजन पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलिजिबल बनाओ, ना कि एक्सक्लूजन पे. और इलेक्शन कमीशन ने बदले में बोला कि सर देखो ये जो आधार है ना और EPIC, दीज कैन बी फॉर्ज्ड, ये आप नकली भी बना सकते हो. तो इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ऐसे तो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप मान रहे हो दे कैन ऑल्सो बी फॉर्ज्ड. तो बस सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये बोला है इलेक्शन कमीशन को कि भाई बी मोर इंक्लूसिव rather than eliminating people, try to inculcate more and more people because India is a vibrant democracy. और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला है कि हो सकता है 1 अगस्त को कुछ लोगों का नाम ना आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई कैन नॉट डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन. तो सुप्रीम कोर्ट हैज अश्योर्ड द पीपल दैट इट माइट डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन. चलो फिलहाल ये न्यूज़ है, ये फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद करने चाहिए. बाकी देखो इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ अ जज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ जस्टिस वर्मा केस. तो इसको आप डिटेल में करके जाइएगा फ्रॉम वेरेवर यू आर टेकिंग योर कोचिंग क्लासेस फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट. चलो यू अंडरस्टूड दिस, so that is it. Chalo, now what a day of 29th of July. I hope you have liked these videos. In case you just started watching these, please make sure that you are watching the previous videos also, right? So you can start making your own notes. This won't take a lot of time. 2x पे आप देखिए you start making your own notes. चलो, that is it. Let us start with the first news. तो देखो, 3 hardcore terrorists killed in Srinagar, links to Pahalgam being probed. देखो, Operation Sindoor is very important for your upcoming examination. Operation Sindoor पे there is a separate video kept. Please go and watch it. तो हुआ क्या, 22 अप्रैल को 2025 कश्मीर में एक जगह है पहलगाम. पहलगाम में कुछ टेररिस्ट आ गए और उन्होंने रिलीजन स्पेसिफिक टारगेटिंग की एंड सम पीपल वर फाउंड डेड. जिसके रिटेलिएशन में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया. ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड ऑन 9th में. ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया. तो दिस ऑपरेशन सिंदूर वाज अ टारगेट ऑन द टेररिस्ट कैंप्स एंड नॉट ऑन द पाक आर्मी. चलो ठीक, अब हुआ क्या, जो टेररिस्ट ने मारा था उनको हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया. तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन महादेव के तहत हमने वो कुछ टेररिस्ट मार गिराए, उन 4 में से कुछ टेररिस्ट श्रीनगर में मार गिराए. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट आल्सो वेयर इन राजनाथ सिंह हैज सेड दैट इन केस इंडिया नीड्स इट इंडिया माइट गो फॉर एन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आल्सो. जिसके बदले में ऑपोजिशन कह रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर कर लिया उसके बाद भी ऐसा कैसे कर सकता है कि आपको ऑपरेशन 2.0 की जरूरत पड़े. तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए भी आई मेड दिस वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच इट. वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में जो भी एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया हुआ है. रिमेंबर ऑपरेशन महादेव. यहाँ पे एक चीज और याद रखो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये टेररिज्म होता है, संकल्प ये जो टेररिज्म होता है ये बताओ इसके लिए क्या कोई ग्लोबल ट्रीटी नहीं है. तो माय आंसर वुड बी नो. इंडिया हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर अ ग्लोबल ट्रीटी कि भाई ये ग्लोबल ट्रीटी लेके आई है फॉर टू कॉम्बैट टेररिज्म, टू फाइट टेररिज्म, एंड द नेम ऑफ दैट ट्रीटी इज UN यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म. बट इसको एक्सेप्ट नहीं करते कंट्रीज. क्यों, दिमाग में सवाल आएगा, क्योंकि हो सकता है टेररिस्ट फॉर वन इज हीरो फॉर अदर, राइट. समझो भगत सिंह जी के एग्जांपल से. तो भगत सिंह जी, व्हेन भगत सिंह जी डिड बॉम्बिंग्स एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ब्रिटिश जब हम पे रूल करते थे तो भगत सिंह जी ने वहां पे एक साउंड बॉम्ब फोड़ा था. तो अब ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भगत सिंह विल बिकम अ टेररिस्ट क्योंकि भाई बॉम्बिंग की. बट इफ यू व्यू इट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ही वाज अ नेशनल हीरो. तो अ हीरो फॉर वन माइट बी अ टेररिस्ट फॉर अदर. इसीलिए टेररिस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, टेररिस्ट का डेफिनेशन बनाना मुश्किल है. इसलिए टेररिस्ट या टेररिज्म पे वो इंटरनेशनल ट्रीटी पे भी सहमति नहीं बन पाती. इंडिया हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर इट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, बट देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम द कम्युनिटी. चलो दैट इज इट. के बाद कमिंग आउट द थर्ड न्यूज नाउ. तो दिव्या देशमुख, शी इज 19 ईयर ओल्ड एंड जो चेस की सबसे बड़ी बॉडी है, जैसे दुनिया में फुटबॉल रेगुलेट करने के लिए द बिगेस्ट बॉडी इज फीफा, है ना. इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिक में, विच इज इन स्विट्जरलैंड. क्रिकेट रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी बॉडी है ICC, हेडक्वार्टर्ड इन दुबई. ऐसे ही चेस को रेगुलेट करने के लिए बिगेस्ट बॉडी इज फाइड. तो फाइड का एक चैंपियनशिप हुआ जिसमें हमें विमेन चैंपियन निकालना था. तो जो 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट थे, 8 पीपल हु वर क्वार्टर फाइनलिस्ट, इसमें से जो फाइनल हुआ वो फाइनल 2 इंडियंस के बीच में ही हुआ. सो फर्स्ट वाज कोनेरू हम्पी
versus Divya Deshmukh. And Koneru Humpy, mind you, is a very veteran player. She is 38-year-old, while Divya Deshmukh is just 19. But Divya Deshmukh won it, and she has become the first Indian women, to win the World Cup of the chess. Right? Chess World Cup winner है पहली कौन? Divya Deshmukh. Divya Deshmukh. She has beaten whom? Koneru Humpy. She has beaten Koneru Humpy, and Divya Deshmukh has emerged as the first women world champion of chess. Right? So remember all of this. चलो, इसके बाद आते हैं बीमा सखी योजना क्या है. आई होप एवरीवन वुड अंडरस्टैंड व्हाट इंश्योरेंस इज. क्या होता है इंश्योरेंस? देखिए, आप अपना इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? तो लेट्स से यू नेवर नो व्हेन यू विल बी डेड, राइट? सो यू वांट योर फैमिली टू बी सिक्योर्ड. इस वजह से यू गेट अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस. तो आप इंश्योरेंस कराते हो सो दैट आपको कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली को एक पैसा मिलेगा. लेट्स से आप ड्राइव कर रहे थे, आपकी ड्राइविंग से किसी की डेथ हो गई, इसीलिए आप कार इंश्योरेंस कराते हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो, क्योंकि इनकेस डेथ हो जाती है तो अगर कोई एफआईआर भी लिखी जाएगी तो वो पैसा कंपनी देगी, आप नहीं दोगे, है ना? इंश्योरेंस कैन बी ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स. जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपनी आवाज़ का इंश्योरेंस कराएंगे, कोई अपने बॉडी पार्ट का कोई इंश्योरेंस करा लेता है कि अगर इनकेस देयर इज सम मिस हैपनिंग तो कंपनी विल बी लायबल टू पे मी. इंश्योरेंस हैज अ ह्यूज बिजनेस. सो लेट्स से इफ यू हैव अ क्लॉथ शॉप, तो अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया, मान लीजिए आपकी शॉप में कोई पंगा आता है, कोई फायर आ जाएगी, या मान लीजिए कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो कंपनी इज लायबल टू पे यू. द कंपनी इज लायबल टू पे यू. दुनिया भर में इंश्योरेंस की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है. जो टोटल जीडीपी होती है उसका लगभग 7 से 8% लोग अपनी इंश्योरेंस में प्रीमियम में खर्च करते हैं. बट इंडिया में जो इंश्योरेंस में अमाउंट खर्च होता है दैट इज वेरी लेस. इट इज अबाउट 3 to 4%. तो इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं हुआ है. इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं हुआ है ज़्यादा. मतलब इन इंडिया पीपल आर स्टिल नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंश्योरेंस. तो हमें इंडिया में इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ानी है. अब होता क्या है, जब भी गवर्नमेंट को किसी सेक्टर को बढ़ाना होता है ना, तो वो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई बढ़ा देती है कि भाई फॉरेन का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इनकम होगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स चली जाएंगी, वापस इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी, डिमांड ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा. बेसिक इन्वेस्टमेंट साइकिल. अब इंडिया में इनिशियली इंश्योरेंस सेक्टर को हमने सिर्फ और सिर्फ 24%, 26% तक अलाउ किया था कि अगर 100 रुपए कंपनी में लग रहे हैं तो फॉरन से 26 रुपए ही ला सकते हो. इसको धीरे धीरे बढ़ा के हमने 49 रुपीज किया, 49%. करेंटली इट इज 74%. तो लेट्स से इफ इन इंडिया यू वांट टू मेक अ इंश्योरेंस कंपनी, तो आप 74% पैसा फॉरन से लगवा सकते हो, 26% पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा. बट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसको धीरे धीरे 100 करेंगे सो दैट मोर एंड मोर मनी कैन फ्लो इन, सो दैट मोर एंड मोर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैन हैपन इन इंडिया. इसी स्कीम, एक लार्जर स्कीम को देखते हुए हमने एक स्कीम लॉन्च की, बीमा. बीमा मीन्स इंश्योरेंस, बीमा मीन्स इंश्योरेंस. बीमा सखी योजना. इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 18 से 70 साल तक की जो विमेन है, स्पेसिफिकली विमेन, इनको टारगेट कर रहे हैं. किनको टारगेट कर रहे हैं? 18 से 70 साल की विमेन टारगेट कर रहे हैं. और इनको हम एलआईसी एजेंट बनाना चाहते हैं. क्या बनाना चाहते हैं? एलआईसी एजेंट. और इनको ऑब्वियसली कुछ सैलरी मिलेगा, तभी तो बीमा सखी, बीमा की फ्रेंड. अब इससे होगा क्या, जब हम बीमा सखी योजना को इंप्लीमेंट करेंगे तो एक तो हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगी, है ना? उससे लोगों की सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, लोग डरना कम कदम करेंगे. अगर मान लीजिए उनको कुछ मिसहैपनिंग भी होती है तो देयर फैमिली विल गेट समथिंग. इसके साथ में सिंस वी आर टारगेटिंग ओनली विमेन, तो हमें विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलेगा, विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलेगा. इसके अलावा एसडीजी 5, मैंने आपको बोला था सारे एसडीजी याद करके जाइए एग्जाम. एसडीजी 5 टॉक्स अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी. तो इससे जेंडर इनइक्वालिटी भी खत्म होगी, यस और नो? साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स बढ़ेंगी, लोगों की सेविंग हैबिट्स बढ़ेंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा. इसके साथ में हमारा जो डिजिटल इंक्लूजन है इसको भी इंपावरमेंट मिलेगी. तो एक डिसीजन से मल्टीपल बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, राइट? तो बीमा सखी योजना इज स्पेसिफिकली फॉर विमेन एज बिटवीन 18 to 70. इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत इसमें नहीं है. बाकी मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाई इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इज वेरी लेस, so we need to increase awareness about insurance so that more and more people start taking insurance and start availing the benefits of insurance. More and more people would be covered under the benefit of social security. This will ultimately lead to better lifestyle या ease of living. चलो, so that is it. सिर्फ इतना पढ़ो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. और हमें विकसित भारत तो करना ही है. तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 एक और हमारा मिशन है. सिंस वी वांट इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इंश्योरेंस फॉर ऑल by 2047, बीमा सखी योजना becomes very vital for this ambitious target of the government of India. You can read this if you want to, and in case you want this PDF, go and install our app. It's available on both Play Store and App Store. Play Store पे जाओगे तो डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा. App Store पे जाओगे, go and search My Institute. My Institute सर्च करने के बाद you'll find a red color icon. वहां पे आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, आप वहां ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखोगे ERAVU. क्या लिखोगे? ERAVU, and you can avail this PDF there, right? So the organization code is ERAVU. चलो, so that is it. You can read it. जितना याद करना है वो मैं आपको समझा चुका हूं और वो हम समझ जाएंगे. इसके बाद हमें एक और याद रखना है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र.
देखो एक्सरसाइजेस के लिए आई ट्राई टू ब्रिंग अ सेपरेट क्लास, बट होता क्या है, आपको वॉर करना है, वॉर रेडी तो रहना ही है ना, वॉर रेडी हमेशा रहना चाहिए। अब वॉर रेडी करने के लिए या तो वॉर कराओ या फिर मॉक्स करो। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, इन्हीं को कहते हैं मॉक ड्रिल्स। तो जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं ना, कंट्रीज विद गुड रिलेशंस, ये जो पीस टाइम होता है, पीस टाइम मतलब देखो या तो युद्ध चल रहा होगा या युद्ध नहीं चल रहा होगा। वॉर चलता है तो कहते हैं कंट्रीज एट वॉर, वॉर नहीं चलता है तो इट इज सेड दैट वी आर एट पीस। सो करंटली इंडिया इज एट अ पीस टाइम, राइट। तो पीस टाइम पे हम करते हैं कि अपने फ्रेंडली रिलेशंस के साथ मॉक्स करते हैं। मॉक्स करते हैं कि हम वो एक्सरसाइजेस करते हैं, उन कंडीशंस को बनाते हैं वेयर इन वॉर इज पॉसिबल, एंड इफ देयर इज सम एक्सटर्नल थ्रेट, इफ देयर इज सम वॉर हैपनिंग, हाउ डू वी टैकल इट। सो इंडिया एंड सिंगापुर, सिंस इंडिया हैज गुड रिलेशंस विद सिंगापुर, और सिंगापुर को याद करो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी रैंक 1 मिला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 1 मिला है, और सिंगापुर से बहुत सारा एफडीआई भी इंडिया को आता है। चलो, तो इंडिया एंड सिंगापुर शेयर अ वेरी गुड रिलेशन। सिंगापुर is also is like one of the largest, the fastest growing economies of Asia. चलो, तो इंडिया एंड सिंगापुर have launched an exercise. The exercise is called as exercise कुरुक्षेत्र। वो कहाँ पे रहा है ये? This is happening at जोधपुर। This is happening at जोधपुर। Where is जोधपुर? जोधपुर is in राजस्थान। जोधपुर is in राजस्थान, इंडिया। चलो, just remember exercise कुरुक्षेत्र is an exercise between India and Singapore. देखो एक्सरसाइजेस के लिए विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो। एक बार एग्जाम थोड़ा आसपास आने दो तो वहाँ पे जो 10 20 30 एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट होती है, विल ट्राई टू कवर इन अ सिंगल वीडियो। वहाँ से कर लोगे। चलो, इसमें तो इतना ही पढ़ने को था। यू कैन स्टार्ट। व्हाई इज दिस इन न्यूज़? पहले याद रखो, देखो ये एक बहुत प्यारी सी बर्ड है, और इस बर्ड की खासियत है ये आपके इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में मिलती है, और इंडिया के भी स्पेसिफिक रीजन जो है ना, ये थार डेजर्ट वाला रीजन, ये गुजरात राजस्थान, यहाँ पे मिलती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अच्छा, ये थोड़ी हैवी बर्ड होती है, और ये जब हैवी है तो बहुत ऊपर नहीं उड़ पाती, तो नीचे नीचे उड़ती है। जब नीचे नीचे उड़ती है तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक पोल्स से ये करंट खा के मर जाती है, जिस वजह से अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंसर्न्स फॉर दिस बर्ड। क्योंकि देखो एक चीज याद रखो, ये जो इंडेंजर्ड है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जिसको ये सब समझ नहीं आ रहा है, प्लीज स्टार्ट वाचिंग दोस वीडियोस। मैं पहली बार अगर कोई चीज चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं तो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन की हुई है ना। आई डोंट वांट यू टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, है ना, क्योंकि आई एम नॉट हियर फॉर व्यूज कि आप ज्यादा देख ले। आप पीछे से देखना शुरू करो, मैंने 100% ये आईयूसीएन बताया जरूर होगा। चलो, आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड किसका? ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड का। इट इज पॉपुलर बिकॉज इट इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। मैंने आपको बता रखा है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए होता है एनिमल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट। जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए कानून लगता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, ये 1960 का लॉ है। तो वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, उनके लिए लगता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर इसकी शेड्यूल 1 में एनिमल या प्लांट मेंशनड है तो उसको हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके शेड्यूल 1 में मेंशनड है। अब ये ना, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी, हमारे पास करंटली सिर्फ 100 से 150 जीआईबी बचे थे। तो अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पोल से मर जाते थे क्योंकि ये नीचे हाइट पे उड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रोटेक्टिंग इट नाउ, सो दैट वी कैन स्टार्ट प्रोटेक्टिंग इट नाउ। तो इसी वजह से a Supreme Court appointed expert committee has proposed designated power corridors and revised priority conservation zones। तो ये कह रहे हैं कि हमें डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाने चाहिए। तो जैसे मान लो इस एरिया में जीआईबी मिलता है, और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक पोल ऐसे जा रहा है ऐसे लाइन जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि पहले से डेडिकेटेड बनाओ, इधर उधर कहीं पे भी मत बना दो, सो दैट दीज एनिमल्स आर ऑल्सो अवेयर। अवेयर का मतलब इनको कैसे पता होगा, बट डेडिकेटेड पावर लाइन्स होंगी तो हमें ह्यूमंस को तो एटलीस्ट पता होगा ना कि यहाँ पे पावर लाइन्स हैं, तो वहाँ पे ये ज्यादा नहीं जाएंगे। तो बस आप याद रखो, ऑल ऑफ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। इट हैज द हाईएस्ट प्रोटेक्शन एंड इट इज अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसी। हाईएस्ट प्रोटेक्शन बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इट इज फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो इसकी बहुत शिकार होते हैं, इंडिया में इट इज फाउंड स्पेसिफिकली इन राजस्थान एंड गुजरात, और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा मिलती है। चलो, so that is it, you can read this if you want to, but जो याद एग्जाम के लिए याद करना है, that is it. So this is what you have to remember from this beautiful bird, right? चलो, and this is like बहुत सुंदर दिखती है, मैंने इसको देखा भी हुआ है। तो जोधपुर के पास एक जगह है रामदेवड़ा, वहाँ पे आपको मिलेगी, बहुत सुंदर बर्ड है। इसको देखो, तुमको खुद मन करेगा कि इसको मैं प्रोटेक्ट करना शुरू करूँ, बिकॉज बहुत कम है, 100-150 है, टाइगर से भी कम है। तो यू कैन रीड दिस फ्रॉम हियर, बॉडी इज ब्राउन, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ब्लैक ब्लैक क्राउन भी आप एक देखोगे, क्या ना, ये ब्लैक क्राउन है, देखो ऐसा लगता है ब्लैक कलर का इसने कोई मुकुट लगा रखा है, विच मेक्स इट मोर एलिगेंट। चलो, तो दैट इज इट। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, चोला लेगेसी एज अ ब्लूप्रिंट फॉर मॉडर्न इंडिया। अभी देखो इस पे क्या करना है, मैंने यहाँ से 3-4 दिन पहले के न्यूज़पेपर में चोलास के बारे में बताया था, जब मोदी जी राजेंद्र चोल के बर्थ एनिवर्सरी पे गए थे, है ना, वहाँ पे मैंने चोलास को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे आप देख पा रहे हो, अभी हमारी जो एनसीईआरटी है वहाँ से मुगल के चैप्टर्स को हटाया है, साथ ही हमने अकबर और ऐसे जो मुगल एम्परर्स हुए उनको थोड़ा सा, उनका जो दूसरा साइड ऑफ लेट्स से किंगशिप था
दूसरा साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो हम अपने नए हीरोज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रादर ये बोलने से अच्छा है कि ये देखो इनका बहुत अच्छा लेगेसी था एंड दीस पीपल, बट समहाउ ये इतना हिस्ट्री में कवर नहीं किया जाता था। बट नाउ द गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड इट्स फोकस, और हम अपनी चोला जो ग्रेट चोलाज हैं उनको उन पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, सो दैट इट कम्स इनटू नेशनल कॉन्शियसनेस। मेरे आपके जैसे बच्चे इसको ज़्यादा पढ़ें, क्लास 7, 6, 8 के बच्चे चोलास के बारे में ज़्यादा जाने। रेफरेंस मिलेगा आपको किताबों में, लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। आई मेक अ सेपरेट वीडियोज ऑफ चोलास, क्योंकि चोलास पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस ईयर, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन चोलास इफ आई गेट सम कमेंट्स। So I'll make a separate video which would be around 40-45 minutes, और चोलास से related कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो you'll be able to answer it. So I'm not covering it here. In case I get good comments, good likes, and in case you want a video on it, I'll specifically make a video on cholas and probably upload it, or ask these people to upload somewhere on this Sunday or next Sunday. ठीक है, so I'm not covering this for now. That is it. Probably see you tomorrow, and I hope you're watching these lectures. In case you're watching these lectures, please like, comment, share and subscribe. I never ask this, but in case you are watching it, because मैं ये तो देख रहा हूँ watch time ज़्यादा है, but people are not commenting. So if you want it, like if you want these to be more elaborative, चाहते हो, if you're appreciating the work, please do comment, like and share, so that I'm getting to know कि हाँ कौन से लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, because watch time तो बहुत अच्छी आ रही है ना, but people are not commenting. So if you want a full-fledged video on cholas, do comment. Let me know how these videos are, and in case you want this PDF, you can go and install our app, or either you can call on the number given somewhere in the description, so that our team can get back to you and start providing you with these PDFs. Thank you for now. Have a great day ahead. Probably see you tomorrow. Bye.